So hello guys and welcome back to Essential Academy. So today we will be doing second part of the enzyme. Okay, so already we have discussed few things about the enzymes, about the processivity, कैसे काम करता है, कौन से प्रोटीन का क्या टर्नओवर रेट है. तो मैंने एक असाइनमेंट दिया था जिसमें I have asked like which enzyme has got the maximum turnover rate. Did you get the answer? मिला क्या? The answer is carbonic anhydrase. और कार्बनिक एनहाइड्रेस क्या काम करता है? Where do you find this enzyme? कार्बनिक एनहाइड्रेस. तो ये क्या काम करता होगा पहले भी? So in RBC, remember we have mentioned about the formation of carbonic formation of carbonic acid. So you have got the CO2 from the respiring tissues. It gets dissolved in water and gives you H2CO3, है ना? तो ये हो गया आपका कार्बोनिक एसिड. Now then this immediately dissociates to form HCO3 minus plus H plus. So bicarbonate. ये बाइकार्बोनेट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. बैंड 3 या एनियन एक्सचेंजर या क्लोराइड एक्सचेंजर के साथ वो एक्सचेंज होता है, हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग दी CO2 टू दी लंग्स सो दैट वी कैन एक्सेल आउट. ठीक है, तो ये इन सब का मिला जुला काम है. So which enzyme is responsible for the formation of carbonic acid is the carbonic anhydrase, which has got the maximum or the highest turnover rate among the enzymes. ठीक है. Okay, so in today's lecture we are going to discuss about the cofactor and the coenzymes. So cofactors, they are mostly non-protein, organic, inorganic chemical. So in short, they are not made up of protein molecules. Okay, so they are compound of metallic ion that is required for catalyst for the reaction. For example, आपका DNA pol है, right? DNA polymerase, it needs Mg2+. अभी अगर आपके सोल्यूशन में PCR में if you are not adding Mg2+, then the DNA pol का जो activity है, जो processivity है, it will go down. So when I say that DNA pol का processivity go down, what do you mean by processivity? It is number of nucleotides added in the newly synthesized strand per second. ठीक है, तो जितना ज्यादा हाई होगा उतना जल्दी आपका DNA synthesize होगा. And to have increased processivity of the enzyme, you need cofactors like Mg2+. Okay. Now, these cofactors, they help in catalysis of the reactions. They're also known as helper molecules. And they bind with the enzymes and help during the catalysis of the reactions. So without cofactor binding, an enzyme is known as apoenzyme. After binding of cofactor with apoenzyme, it is known as holoenzyme, which is active form of the enzyme. तो ये हर बार जरूरी नहीं होगा. Okay. Now why? Because all proteins, all enzymes does not need cofactors. जिस केस में cofactor binding required है उसी केस में. So पहले आपका enzyme apoenzyme कहलाएगा, यानी कि इसमें सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल है. जब apoenzyme में आपका cofactor ऐड हो जाएगा, then it becomes your holoenzyme or the complete enzyme. ठीक है. Okay. Now, mostly cofactors are the metal ions and the cofactors which bind at the active side of the enzyme. If it is not available to the bound, the active side, a function does not occur. So, in short, मतलब क्या? जो proteins को cofactors की जरूरत होती है, without cofactors, they will not be functioning properly. Cofactors are divided. Sorry. Cofactors are divided into coenzymes and the processivity groups, and the processivity groups refer to tightly bound. तो यहाँ पे processivity groups क्या हो गए? जो आपके covalent bond बना रहे हैं, ठीक है? And cofactors such as metal ions और trace elements जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, Mg2+ हो गया, मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, जिंक, सेलेनियम, मोलिब्डेनम. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनम आपको जरूरत होती है नाइट्रेट रिडक्टेज में, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है. Now, these are the some inorganic elements which have or which serve as the cofactors for the enzymes. अभी ये क्या है, इसमें से थोड़ा सा याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम पढ़ेंगे अबाउट द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. इट नीड्स कॉपर. देन कैटलेज पेरोक्सीडेज, Fe2+ याद रखो. पायरुवेट काइनेज K+, हेक्सोकाइनेज Mg2+, ribonucleotide reductase Mn2+, dinitrogen molybdenum urease nickel, then glutathione peroxidase selenium, carbonic anhydrase zinc. ठीक है.
ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बट इट विल बी गुड कि अगर आप इनको याद कर लो, बिकॉज कैसा होता है ना, 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हमेशा पूछ लेते हैं कि कौन सा को फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सिर्फ ये याद कर लो कि बहुत है, बिकॉज दीज आर ऑल कलेक्टेड फ्रॉम दी ऑल PYQs एंड मेड इट टू अ टैबुलर फॉर्म. Okay, Pallavi find out how to please stop and answer. Okay, now Yes, talk ma'am. about the coenzymes. So these coenzymes are the small, organic, non-protein molecules that assist the catalysis of the reaction. So of course they are loosely bound to the enzyme and they play important role in group transfer reactions between ATP and coenzyme A, oxidation reduction reactions such as NAD+ and coenzyme Q10. अभी क्या है, इतना भी यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, जैसे ही हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि these coenzymes, okay, they help in the transfer of the groups between the ATP coenzyme A हो गया, NAD+ आपको कैसे ट्रांसफर होगा, coenzyme Q10 आपका कैसे काम करता है, like whenever there is a transfer of the H+, ठीक है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे that coenzyme कैसे आपका वर्क करता है. So just remember what are these coenzymes. Okay. Now, mainly these coenzymes are nothing but the derivatives of vitamins. अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना बहुत जरूरी है. Okay. Now, these are the coenzymes required by these enzymes. So, thymine pyrophosphate pyruvate dehydrogenase में, FAN monoamine oxidase, NAD lactate dehydrogenase, pyridoxal phosphate, ये हो गया आपका विटामिन B6, ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, कोएंजाइम A एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज. अभी एसिटाइल कोए, ग्लाइकोजन, लैक्टेट, ये सब आपको मेनली कहाँ पे हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, ये सारे एंजाइम आपके तब काम आएंगे. And we need to remember the names of the enzymes also as well as the coenzymes which are required. Biotin हो गया आपका pyruvate carboxylase, then 5-deoxy adenosyl cobalamin methyl manolin mutase, then tetrahydrofolate THF, जो आपका ये फॉलिक एसिड होता है, ठीक है. थाइमिडिलेट सिंथेस, अभी यहाँ पे देखो क्या है, थाइमिडिलेट सिंथेस, इसका मतलब क्या है, ये आपका थाइमिन सिंथेसिस में काम आता है, राइट. एंड थाइमिन सिंथेसिस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दी न्यूक्लियोटाइड्स. जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं, so it means it is required in the newly or the new synthesis of the cell, ठीक है. So इसलिए like there are many cases, जैसे कि जहाँ पे भी कोई डेवलपिंग बेबी होता है या प्रेग्नेंट वुमेन होती है, लाइक हैविंग दी डेवलपिंग बेबी, तो हम उनको ये फॉलिक एसिड देते हैं. Why? Because it helps in the synthesis of new nucleotides and new nucleotides will be required for the cell division, है ना. तो जहां जहां पे आपका सेल डिविजन फास्ट होना चाहिए, वहां पे आपका फॉलिक एसिड बहुत काम आता है. सो फॉर एग्जांपल, लाइक देयर आर मेनी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हेयर लॉस, हेयर फॉल जिसको होता है, या इसका स्किन लूज बहुत जल्दी हो जाता है, right? So all these problems can be treated if the person is having small doses of folic acid every day, ठीक है. तो ये ऐसे दुकानों में भी अवेलेबल रहता है, you can purchase it, and like the people who are having severe hair fall, they can have this medicine, and the hair fall will stop in 4 to 5 months. Okay, this is additional information only. Okay, now normal nature and classification of enzymes, ये थोड़ा important है, and it is better to remember also. Various systems have been evolved to name and classify the enzymes over the period of time. तो बहुत सारे हमने निकाले हैं. The best which one was the enzyme nomenclature, जो हमें अभी आज डिस्कस करेंगे वो ही माना जाता है. बाकी सब में कैसा होता है ना, ट्रिवियल नेम रहता है, तो उसे पता नहीं चलता कि वो किस तरह का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, एंजाइम्स एक्टिंग अपॉन कार्बोहाइड्रेट्स, अपॉन जो कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करेंगे, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि कार्बोहाइड्रेसेस हो गए, प्रोटीन से तो प्रोटीएजेस हो जाएंगे, लिपिड से तो लाइपेज हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लियसेस हो जाएंगे. बट हमें कभी ये नहीं पता चलेगा कि वो प्रॉपर किस तरह का एक्शन हो रहा है उसके ऊपर, कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक था या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक था, वाटर लॉस हुआ या ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, ये सब हमें इसके ट्रिवियल नेम से नहीं पता चलेगा, ठीक है. इसलिए एंजाइम नॉमेनक्लेचर जो था उसको हमने बेस्ड किया है रिएक्शन जिसको वो कैटलाइज करता है. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस. सो कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस यानी कि वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट है. आइसोमेरेजेस, ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजनेजेस, ट्रांसमिनेजेस, ट्रांसआल्डोलिसेस, ट्रांसकीटोलिसेस, फॉस्फोराइलेजेस,
अभी क्या है, हमें ये सुनते ही पता चलता है कि वो किस तरह का कैटालिसिस कर रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, है ना। ओके, so enzymes nomenclature based upon substrate acted upon and type of reaction catalyzed. So the names of these enzymes give the clue to both the substrate utilized and the type of reaction catalyzed. For example, अभी हम जैसे नाम लेते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज कहाँ पे हम पढ़ेंगे? In future, we are going to talk about in the Krebs cycle. हाँ, okay. So succinic dehydrogenases, it catalyzes the dehydrogenation of the substrate succinic acid. तो succinic acid में dehydrogenation मतलब क्या? आपका हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो रहा है एंड succinic acid जो है वो आपका फ्यूमेरेट बन जा रहा है, ठीक है। Now, enzymes nomenclature based upon the substance that is synthesized. Fumarate that forms fumarate from malate. Hexokinase and glucokinase क्या करते हैं, right? So they are kinase. Kinase क्या करता है? It adds the phosphate group. तो एक बार जब आपको ये पता चल जाता है तो it becomes very easy to understand कि किस तरह के रिएक्शन कैरी आउट करेगा। जैसे ग्लूकोकाइनेज है तो इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप इज गोइंग टू बी एडेड ऑन दी ग्लूकोज। तो हमें मालूम है ग्लूकोज से वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप इन दी ग्लाइकोलिसिस। Now, to address the unambiguity and uniformity in the identification of enzymes nomenclature system based on the type of chemical reaction, the mechanism is given by International Union of Biochemistry. तो हम इसके जो पार्ट्स हैं इसको फॉलो करते हैं इन दी nomenclature of enzymes, ठीक है। Now, so the major features of this system are, first of all, there are 6 major classes. हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे. And under 6 major classes, we have got the 4 to 13 subclasses. And then again, we have got the suffixes and prefix to add so that we can understand किस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हाइड्रोलेज, एज वाला हम सफिक्स ऐड कर देंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। For example, the enzyme malate dehydrogenase catalyzes the following reaction. तो आपके पास malate है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कौन सा कोएंजाइम यूज किया, दैट इज योर निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD। मैलेट से आपका पायरुवेट बना है और CO2 रिलीज हुआ है, यहाँ पे NADH रिड्यूस हो गया है, ठीक है। सो द एंजाइम हैज नाउ बीन डेजिग्नेटेड एज L-malate। NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज हुआ, कार्बोक्सिल ग्रुप आपका रिलीज हुआ, इससे डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। अभी इसको ऑक्सीडो रिडक्टेज क्यों बोला है? बिकॉज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। आपका NAD प्लस जो है NADH बन गया, इससे वहां पे क्या हुआ? वो रेड्यूस हुआ, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है किस तरह का जो रिएक्शन है कैटलाइज हुआ है ना। अभी ये थोड़ा सा और समझने वाली बात है। इन द IUB सिस्टम, enzyme code EC number that reflect the type of reaction catalyzed and the substrate involved. The enzyme code have 4 digits. The 4 digit has class, subclass, subclass and the serial number of that particular enzyme. ठीक है, तो क्या हो गया? आपके पास क्लास है, सब क्लास है, सब क्लास है और उसका सीरियल नंबर। तो क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं कि आपके पास अगर सपोज ऐसा कोई एंजाइम का नाम दिया है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर दिया तो 2111, तो इसमें से आपको समझना है कि ये कैसा है। तो पहला आपका हो गया 2 यानी कि ट्रांसफेरेज होगा, फिर सब क्लास, सब क्लास एंड द सीरियल नंबर। ये आपका हर एक एंजाइम का अलग अलग होगा, ओके। एग्जांपल्स है उसको हम देखते हुए करेंगे। So the first number indicates the major class to which enzymes belong. Second number, it talks about the groups involved. Third number talks about the substrate onto which the groups acts, and the fourth number indicates the serial number of the enzymes. For example, let's have this example. जैसे कि आपको दिया गया है EC नंबर है 2711, ठीक है। So 2 हो गया आपका क्या? ट्रांसफरेज। सब क्लास 7, तो 7 मतलब ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हुआ। सब क्लास 1 कौन सा ग्रुप आपको ट्रांसफर हो रहा है? अल्कोहल ग्रुप आज फॉस्फेट ग्रुप आपका एक्सेप्टेड हो रहा है। देन फाइनल डिजिट क्या है? इट विल टॉक अबाउट द एंजाइम दैट इज, ये क्या लिखा है यहाँ पे?
hexokinase. Okay, it's hexokinase or the ATP. So dehexo-6-phosphotransferase. dehexo-6-phosphotransferase ये हो गया पूरा नाम इस एंजाइम का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट कैटलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बन 6 ऑफ ग्लूकोज। सो हमें मालूम है कार्बन के यहाँ पे आपका 6th ग्रुप जो रहता है CH2O जो OH जो ग्रुप रहता है, यहाँ पे OH हटा के आपने यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है, ठीक है। तो इससे हमें पूरा पता चलेगा कि ये कौन सा एंजाइम है। शॉर्ट में हमने बोल दिया है कि ये हेक्सोकाइनेज है, ठीक है। अब हेक्सोकाइनेज से क्या पता चलता है कि किसी भी 6 कार्बन शुगर में काइनेज ग्रुप जो है आपका फॉस्फेट ऐड कर रहा है, राइट। नाउ बट इफ वी सी लाइक दिस dehexose-6-phosphotransferase, तो ये आपको पूरा बताएगा कि 6 कार्बन शुगर हेक्सोज ले रखा है, उसमें आपने फॉस्फेट ग्रुप जो है ट्रांसफर किया है ऑन द 6th कार्बन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। तो OH ग्रुप रिमूव करके आपने फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है, यानी कि ट्रांसफर किया है, ठीक है। पल्लवी ये समझ में आया क्या यहाँ पे कैसे इसको हमने रिप्रेजेंट किया है 2711 को? Okay, so there are 6 major classes of the enzymes and let's talk about this. ये important है थोड़ा, okay, तो इसको भी याद करना भी जरूरी है, then only it is possible for you कि कोई भी नंबर जो दिया है उसको हम पूरा नॉर्मल। So as I was saying, so अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 6 major classes of enzymes हैं। इसमें अगर थोड़ा सा याद हो जाएगा तो देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू टेल कि कौन सा आपका नंबर जो दिया है, जैसे नॉमेनक्लेचर एंजाइम क्लासिफिकेशन का नंबर है 1.2, 0.3, 0.4 दिया है, तो इसका मतलब वो कौन सा एंजाइम होगा आप वो बता सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी 6 क्लासेस एंड यहाँ पे हमने रिएक्शन कैसे क्या है वो भी हमने डिस्कस किया है, ओके। सो पहला हो गया आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑफकोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो रिडक्स रिएक्शन की बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। एंड जहां पे भी डिहाइड्रोजनेज आएगा वो आपका एंजाइम क्लासिफिकेशन में 1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं, जहां जहां भी डिहाइड्रोजनेज आएगा वो आपका फर्स्ट क्लास को बिलोंग करेगा, दैट इज योर ऑक्सीडो रिडक्टेज। जहां पे भी डिहाइड्रोजनेज रहेगा, सो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हो गया, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज हो गया, देन आपके पास मैलेट है, पायरुवेट है, so all these belongs to the class 1. And then coming to the transferase, second class. जब भी ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो आपका क्या हो सकता है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है, कीटो ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव गॉट दी ट्रांसफरेज। तो जितने भी काइनेज हो गए, ठीक है, ये सब आपके सेकेंड क्लास में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जितने भी एंजाइम होंगे ये आपके 2 पॉइंट से शुरू होंगे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस नाम से ही पता चल रहा है, इट इज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सो ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स टू वाटर, एग्जाम्पल आपका काइमोट्रिप्सिन हो गया है, ठीक है। तो हम आगे लाइक इन दी अपकमिंग लेक्चर्स वी विल टॉक अबाउट हाउ दीज एंजाइम्स आर एक्चुअली फंक्शनिंग, कैसे वो पर्टिकुलर कैटलाइज करती हैं रिएक्शंस को, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना याद रख लो दैट हाइड्रोलाइसिस जहां पे भी आपको वाटर यूज होता है, एक एग्जांपल होगा आपका काइमोट्रिप्सिन। लाइज, लाइज सुन के क्या लगता है, लाइज इट इज गोइंग टू break the bonds, right? So it is the addition or removal of groups to form the double bond. तो एग्जांपल हो गया आपका फ्यूमरेज। देन नेक्स्ट आइसोमरेज, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी कि जो आपका एल फॉर्म था वो आपका डी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज कहाँ पे हमने पढ़ा है, ऑफकोर्स जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तब वहां पे हमें फिर से ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज के बारे में मिलेगा पढ़ने को। देन द लास्ट वन इज, लास्ट ग्रुप जो है वो आपका हो गया है लाइगेज। नाम से ही पता चल रहा है इट इज गोइंग टू जॉइन द टू सबस्ट्रेट्स एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। एक एग्जांपल दिया आपका एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज हो गया है, डीएनए लाइगेज हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आ सकते हैं इस कैटेगरी में। तो अभी आपको ओवरऑल क्या याद रखना है, ऑक्सीडोरेक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइगेज, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस, ठीक है। 6 ही क्लास है,
इतना भी याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेनली इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा कि 3.4.1.1 कौन सा एंजाइम है, ठीक है। अगर सपोज ये ऐसा कुछ दिया भी है तो आपको कैसे पता चलेगा 3 मतलब हाइड्रोलेज हो गया, 4 मतलब सब ग्रुप हमें देखना पड़ेगा, 1.1 है तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा ऐसे आपको पता करना पड़ेगा, बट उसके लिए ये सीक्वेंस जो है ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइज, आइसोमेरेज एंड लाइगेजेस। चलो एक दो हम हैं जो आज डिस्कस कर लेते हैं। So the first one is oxidoreductase या redox reaction का. So oxidation reduction reactions are very common in biochemical pathways and are catalyzed by the enzymes called oxidoreductases. So in an oxidation reduction reaction, one substrate gains electrons. So of course, तो जब gain कर रहा है तो वो reduce हो जाएगा और दूसरा lose करेगा तो वो oxidize हो जाएगा. ठीक है. Examples are dehydrogenases. Most hydroxylases and oxidizers require metal ions such as Fe2+ for the electron transfer. So again ये इनके co-factors हो गए हैं. तो dehydrogenase आपका oxidoreductase कैटेगरी में आता है and it requires co-factors like Fe2+ for the electron transfer. तो यहाँ पे देखो A reduce फॉर्म में है, B ऑक्सीडाइज है, तो आगे जाके क्या होगा आफ्टर द रिएक्शन A आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, B आपका रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस होना क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा H ग्रुप जो H आपका एटम है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है. ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफरेजेस. तो ट्रांसफरेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. एक हो गया आपका काइनेज जो आपका हमेशा फॉस्फेट ग्रुप आपका ऐड करता है, ठीक है. तो ट्रांसफरेजेस ट्रांसफर a functional group from one molecule to another. Now if the transferred group is high energy phosphate, then the enzyme is kinase. अगर कार्बोहाइड्रेट किया है तो वो हो गया आपका ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज. फैटी एसिड ग्रुप है तो हो गया वो असाइल ट्रांसफरेज. सिंपल है ना. फॉस्फेट ग्रुप काइनेज, शुगर ग्रुप हुआ तो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, फैटी एसिड ग्रुप हुआ तो असाइल ट्रांसफरेज. सिंपल. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया याद करने के लिए, ठीक है. अ कॉमन फीचर ऑफ दीज रिएक्शन इज दैट ग्रुप बीइंग ट्रांसफर एग्जिस्ट एज अ गुड लीविंग ग्रुप ऑन द डोनर मॉलिक्यूल, ठीक है. डॉक्टर ने डोनर मॉलिक्यूल. अनदर सबसेट ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, A प्लस B प्लस C है, एक ग्रुप हमने ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे एक साथ. सो A प्लस BC आपका एक साथ बन जाएगा, ठीक है. Now coming to the hydrolases. So in this case, in the hydrolases reaction, CO bond, CN bond, CS bonds are cleaved by the addition of water. Hydrolases, water आपका लगेगा, ठीक है. So in the form of the OH and H to the atoms forming the bond. अब यहाँ पे देखो क्या है, AB plus H2O दिया हुआ है, ठीक है. क्या होगा, एक ग्रुप के साथ आपका H बाइंड हो गया है और दूसरे जो B है उसके साथ आपका OH बॉन्ड हो गया है, ठीक है. तो द एंजाइम क्लास नेम स्पेसिफाई द ग्रुप बीइंग क्लीव्ड, ठीक है. फॉर एग्जांपल काइमोट्रिप्सिन इज अ प्रोटीज, हाइड्रोलेज दैट क्लीव्स पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स. तो काइमोट्रिप्सिन प्रोटीज जो रहते हैं वो क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है. कैसे ब्रेक करेंगे, विद द एडिशन ऑफ वाटर. सो इफ यू रिमेम्बर, जब आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, CONH ग्रुप बनता है, so what happened that time, it is a condensation reaction between two amino acids. It means there was release of water to form peptide bond. अब जब मुझे पेप्टाइड बॉन्ड ही तोड़ना है, so what will I do, I will make use of water, ठीक है, and H and OH ग्रुप में ऐड कर दूंगी. तो जस्ट द रिवर्सल ऑफ योर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज द हाइड्रोलेजेस. इसलिए कोई भी प्रोटीज हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सारे क्या करते हैं, आपके पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू नीड वाटर इन ऑर्डर टू रिमूव द इन ऑर्डर टू क्लीव द पेप्टाइड बॉन्ड. पल्लवी क्लियर है इतना? यस मैम. So the lyase class of enzymes cleaves CC-COCN bonds by means of other hydrolysis or oxidation. ठीक है. यहाँ पे क्या है, it is same to the hydrolysis enzyme, but अंतर क्या है, यहाँ पे हम water use नहीं कर रहे हैं, we are using other substrate in order to break the bond. ठीक है. So you have got the A double bond B and another molecule HX. अब क्या होगा, ब्रेक किया है हमने बॉन्ड और एक हो गया आपका AX and BH. इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, आल्डोलेजेस, डी कार्बोक्सिलेज जो आपका CO2 रिलीज करता है, थायोलेज जो आपका H2S ग्रुप रिलीज करे,
ठीक है। देन आइसोमरेजेस, सो यहाँ पे क्या होगा, आपका एल कन्फर्मर जो है वो डी में बन जाएगा, या दिस इज लाइक ओनली आइसोमराइजेशन इज हैपनिंग, ठीक है। So, for example, enzymes rearranging the bond structure of a compound are called isomerases, whereas enzymes catalyzing a movement of phosphate from one atom to another are called mutases. ये दोनों इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लाइगेज, लाइगेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक हो गया आपका डीएनए लाइगेज हो गया या सिंथेटाइजेस हो गए, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका सीसी सीएच सीओ सीएन बॉन्ड जो है, दे विल बी कपल्ड टू द क्लीवेज ऑफ, सॉरी, they will be coupled to the cleavage of high energy phosphate bond in ATP or another nucleotide. So A plus B plus ATP. So A और B के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए हमने क्या किया, ATP की जो एनर्जी थी उसको यूज किया है। सिंथेटेसिस यानी कि कुछ बन रहा है, कोई नया सबस्ट्रेट आपका बन रहा है, ठीक है। सो इट विल बी फॉर्म AB plus ADP, देन आपका ADP जो है वो रिसाइकल बैक हो जाएगा, हाँ। ओके, तो ये जो है अभी हम जो डिस्कस करेंगे, जो सेकंड डिजिट जो रहता है, अभी हमने क्या बोला था कि देयर आर 6 क्लासेस, ऑक्सीरिडक्टेज हो गया, आपका ट्रांसफरेज हो गया, हाइड्रोरेजेस हो गए, ये आपके फर्स्ट डिजिट थे, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सब ग्रुप, सब ग्रुप, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम टाइम अल्कोहल जो स्टार्टिंग के जो 1 और 2 डिजिट है वो ही पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर पॉसिबल है तो याद करने की कोशिश करना। फर्स्ट डिजिट आपका अगर ऑक्सीडेटिव है तो सेकंड आपका होगा अल्कोहल, अगर अल्कोहल ग्रुप अगर आपका इन्वॉल्व है, एल्डिहाइड या कीटोन, CH ग्रुप हो गया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, NADH या NADPH, तो आपका डिजिट क्या हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे हो जाएगा। अगर NADH NADPH इन्वॉल्व है तो 1.6 हो जाएगा। अभी हाइड्रोजन एक्सेप्टर डोनर कौन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। Fe3+ है, ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा 1.5.2 ऐसे आपका एंजाइम का नाम हो जाएगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्रांसफरेजेस, कौन से ग्रुप पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, अगर सिंगल कार्बन ग्रुप पे है तो वो हो जाएगा आपका 2.1, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है तो 2.2, तो इसी तरह से अगर फॉस्फेट है तो क्या हो जाएगा आपका 2.7, जो हमने काइनेज के केस में देखा था, है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे किस तरह के बॉन्ड, अगर एस्टर बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक या पेप्टाइड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन दैट। तो हाइड्रोलाइसिस 3, और अगर मैं काइमोट्रिप्सिन की बात करूं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड करता है क्लीव, तो वो हो जाएगा आपका 3.3 पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, ठीक है। सिमिलरली लाइज, कौन सा बॉन्ड वो ब्रेक कर रहा है, CC CO CN CS, उस पे आपका ये डिजिट आ जाएगा। अब कौन सा ग्रुप रिमूव किया है तो थर्ड डिजिट आ जाएगा, कार्बोक्सिल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटो हो गया। सेम विद आइसोमरेजेस, रिकॉग्नाइजेशन है या सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है या DNL में हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट, एंड कौन से सबस्ट्रेट के साथ ऐसे हो रहा है। लास्ट आपका लाइगेज हो गया है, सो डिपेंडिंग ऑन विच बॉन्ड इज बीइंग सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे देखो लाइज में क्या कर रहे थे, हम ब्रेक कर रहे थे, ठीक है। सेम चीज लाइगेज में यहाँ पे हम बना रहे हैं CO CS CN CC बॉन्ड, so depending on that you will have the nomenclature of the enzymes. Okay, yeah. So I'll be stopping here now. Pallavi, कोई डाउट है अभी तक? नो मैम इतना सारा याद करना पड़ेगा। हाँ, मतलब वही मैं आपको बोल रही थी ना कि स्टार्टिंग के जो रहते हैं ना, स्टार्टिंग के दो याद कर लोगे काफी है, बिकॉज इतने सारे कोई याद नहीं कर सकता है, देयर आर 100 हर एक ग्रुप के अंदर। अगर मैं अभी लाइगेज की बात कर रही हूँ तो लाइगेज में सेकंड डिजिट CO CS CN CC, चलो 4 डिजिट हो गया, आपने याद कर लिया, बट देयर आर मेनी अदर बॉन्ड्स आल्सो, डबल बॉन्ड भी आपको सिंथेसाइज होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी सिंथेसाइज होता है, राइट। तो इतने सारे कौन याद रखते हैं, तो एग्जामिनर्स भी वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 3-4 डिजिट का ही पूछते हैं, ठीक है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग पिछले 10 सालों में सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन आया है और नहीं आया, तो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि टाइम है तो याद करो, ऐसे अपने आप को स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 साल में एक ही बार आया है तो यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर भी नहीं आएगा, बट अगर इफ यू हैव टाइम एंड पेशेंस टू बाय हार्ट ऑल दिस थिंग, देन गो अहेड, ठीक है।
मेनली एंजाइम्स Yes, में ma'am. जो पूछते हैं वो बाइंडिंग, एफिनिटी, स्पेसिफिसिटी रिलेटेड पूछते हैं, और जो काइनेटिक रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हम आगे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो है लाइन वीवर बर्ग प्लॉट है उस पे हम पढ़ेंगे कि वो जो न्यूमेरिकल्स है वो कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, कैसा होता है ना, फॉर्मूला तो सभी को याद रहता है बट हाउ टू अप्लाई, कि क्या दिया है क्या करना है वो हम सीखेंगे। और हाँ, these are the main things related to enzyme kinetics। और इसमें एक enzyme inhibition भी आएगा, again it is related to kinetics only, तो वो important है थोड़ा, तो हम उस पर ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट लाइक नॉमेनक्लेचर, अगर आपके पास टाइम है, लगता है कि आप कर सकते हो तो ही करना, अदरवाइज यू कैन स्किप, बट समझना जरूरी है। जस्ट रिमेम्बर जो स्टार्टिंग के जो 6 ग्रुप जो क्लास बताए हैं ना, ऑक्सीडेटिव, ट्रांसफरेज, लाइगेज, लाइज, ये सब आप याद कर लो। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डिजिट याद करने की रहने दो, अब स्टार्टिंग का बस याद कर लो फर्स्ट डिजिट, क्योंकि वो 6 मेन क्लासेस हैं, वो आप थोड़ा याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, तो आई विल बी स्टॉपिंग हियर नाउ।